I literally gathered that courage to be in front of the camera. I think बहुत homework करके आए हो आप. Let me just clap for Martha. Craziest prajati of humankind. 1 to 3 age. Yes, actually. Age 1 to 3 is the craziest prajati of human. That is called too cute and too terrible as well. My passionate job this is. I enjoy these things. So let me enjoy. मुझे यहाँ पे भी नहीं भागना है, मुझे वहाँ पे भी नहीं भागना है, मुझे यहाँ पे ही करना है. और I'm so blessed कि people do travel from all over India to me. So you have to have some level of authority if you want to deliver good quality. Definitely you have to. Then only you can, maintain that consistency. Your own creativity. आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि यू लाइक माई पिक्चर. आपको मेरे पिक्चर क्यों पसंद लगे? क्योंकि उसमें मेरा विज़न है, उसमें मेरी क्रिएटिविटी है. अगर मैं आपकी क्रिएटिविटी से जाऊंगी तो मुझे खुद को ही नहीं पसंद आएगा. And I literally cried. Okay. And my husband was like, don't. That's fine. Sometimes negative comments gives you that strength. Okay. You cannot digest that stuff when you are being so good with everyone. So honest with your work. Because I am the person, I always think about others. मैं मेरी डॉटर के लिए कभी इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं लेती हूँ ऑनेस्टली. होंगे 4,000 5,000 के मैं नहीं लेती हूँ, बट क्लाइंट के लिए आई पे. कोई भी वुमेन को अगर आगे आना है, कुछ भी करना है, husband support is matter. For anybody, not only for women. Yes. It goes for me as well. ये जो भी अपना जो फील्ड है, द फोटोग्राफी फील्ड, इट्स बेसिकली 365 डेज जॉब. एग्जैक्टली. आई नो. जो भी हमारे साथ रहते हैं, दे हैव टू बी पेशेंट. यस. हमारा बिजनेस सिर्फ हमसे चलता है. डेफिनेटली. हमारा बिजनेस Reliance सिर्फ हमसे can do this चलता है. business. Yes. Reliance would never be able to do this business because Exactly. this is one man show. Yes. कैमरा के पीछे हम जो हंसाते हैं ना, अगर किसी ने वो देख लिया ना तो वो हंस के पागल हो जाएंगे. We are not leaving our kid to that person who is doing this crazy thing. अगर आपको अपनी स्टाइल से पसंद है तो यू डू योर्स, बट एटलीस्ट डोंट जज एंड डोंट गिव एनी कमेंट्स ऑन दैट अदर स्टाइल्स. सबकी स्टाइल अलग अलग होती है. Just use your thumb and swipe. Exactly. Yes. हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट. आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन और बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफर है. वो न्यूबॉर्न चाइल्ड फोटोग्राफी और मैटरनिटी फ़ोटोग्राफी करते हैं और उनका नाम है प्रियंका पटेल. आज उनके होम टाउन आणंद में मैं उन्हीं के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ. सो वेलकम प्रियंका जी, कैसे हो आप? यस यस, हेलो. प्रियंका जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से. ओके. कि क्यों एक न्यूट्रिशनिस्ट फोटोग्राफर बनी? Okay. So yes, by education I am a nutritionist and by profession I am a photographer. Nutrition is giving me a depth of wellness and care. But the photography is giving me, taking me to a creative field. That's what my forte, because I love to be creative. Okay. Which nutritionist couldn't give me that creative touch with the emotions. That's the best combination I really love about this baby photography. So that's the reason I'm jumping into photography. And yes, definitely I jumped into this baby photography. Why only baby photography? This photography is okay, but there are many things in photography. But why baby photography? I love kids since when I was kid. Okay, I love to play with the kids, their cute emotions, that all innocent, that faces, I love to capture. So all I feel, why not to give memories to our parents about all these things? So that's the reason I jumped in this newborn baby photography. And obviously after my son's born, I strongly believe I should do this only. Yeah. So can you tell me कि कहाँ से आपने सीखना स्टार्ट किया था? What was that like? Okay. So मेरे सन के बॉर्न के बाद मैंने सोचा कि हाँ, मुझे फोटोग्राफी इसी में करनी है. इवन आई रियली स्टार्टेड टेकिंग हिज पिक्चर, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट पिक्चर. इट वॉज नॉट अ क्वालिटी पिक्चर. सो देन आई थॉट आई शुड लर्न फोटोग्राफी. ओके. बिकॉज बेबीज़ को रखने के लिए सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के लिए सिर्फ कैमरा इज़ नॉट इनफ.
कि we have a camera, we can take baby's picture. No, not at all. That is not enough. You need to know a right knowledge about the baby photography, right? How to handle a baby, because they are very gentle and fragile. So you need a proper training to start a newborn photography. So I think my son was around 1 year, and then I thought the Sandra is coming from Australia. She came to Bangalore, so I convinced my parents, my in-laws, and my husband. So let me go there and let me learn something. That helped me a lot. And then I just keep going on, and learning from all the most of the masters about newborn photography and maternity photography. And then I have started सो this. आपने तकरीबन 5 ऐसे वर्ल्ड नोन आर्टिस्ट के पास से सीखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और पर्सनली सीखा है Yeah, that वैसी is बात कर रहा in हूँ. person. Yeah, Okay. in person. So does it Even I affect if you went learn to. in person? Yes, definitely. It helps to learn in person. In the newborn photography, it's only workshop. It's not a proper education. It's not like a degree or anything. Okay, it's a workshop. What you see and what you learn and what you gain knowledge from that, and even in the person, you get hands-on practice. Okay, hands-on practice means वो आपको बेबी देंगे, and then you have to like feel that gentleness, that warmth of baby, how to curl the baby, and there are a lot many things only you learn from the in person workshop only. Even not only the handling baby, even the how to keep the environment Right. safe, and even the temperature, everything matters in the newborn photography. Okay, so all the small things you learn only from the in person workshop. Okay. So I should definitely say, if you want to start a photography, then you have to learn from a experienced and well known professional photographer only. So in total, how much have you spent on learning? That's a really personal question, but गिनती नहीं हुई है. But yes, I went to USA. I learned from there. From so मैंने डॉलर में भी स्पेंड किए हुए हैं, मैंने पाउंड में भी स्पेंड किए हुए हैं. अगर मैं इंटू कर दूंगी ना रुपीज़ में, तो पीपल विल थिंक लाइक सीरियसली इतने किए हुए. बट अराउंड 10 to 15 lakh डेफिनेटली आई स्पेंड just to 10 to learn. 15 10 lakhs. lakh, yes. Just for the courses. Just for the courses. So न्यूबॉर्न आपका मेन फोर्टे है, Hmm. और साथ में आप टॉडलर लाइक सिटर बेबी और मैटरनिटी, ये 2 चीज़ें भी साथ में करते हो. Yes, yes, yes. सो आपका मेन कंसंट्रेशन इन 3 चीज़ों के ऊपर है. Yes. न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में व्हाट इज़ योर फिलोसॉफी टू कैप्चर अ न्यूबॉर्न्स फोटो? So newborn, they are very delicate. They are very, and they are little only for a little while. Okay, they're gonna grow too fast. If you see a newborn, just born baby, and if you see a 1 month baby, their growth is like that's a huge thing, right? So I feel like one should capture a newborn things, that little toes, tiny feet. It will gonna grow. Okay, they're gonna grow out of your hand. So why not capture those little things? So yes, definitely one should capture a newborn. And Photography. what would be your creative process if we talk about newborn specifically? What are the decisions you make while But before starting the shoot? okay. About the setups, I always decide by my own, but still I have a one form which clients need to fill up their own requirements. So at least I Okay. get to know what they exactly want. Okay. And then I decide by myself which color I should take. And definitely it goes with this baby skin color as well. So I might need to change, on the spot the colors and everything. But I mostly use a subtle colors and combination, textures, everything I choose by my own. That is most important. Which color you choose and So, which texture you pick. जो कलर्स हम पिक करते हैं उसमें सबसे मेजर रोल बेबी का स्किन टोन प्ले करता है. And combinations. Okay. Yes. Baby का skin tone Can you- definitely play करता है, but which combination you pick, that is matter too. Can you give some examples, like if a baby is like मेरे जैसा स्किन है, डार्क स्किन है अगर, Mostly Indian baby has the हाँ. same So skin tone. what would be the color? What should be the colors? Just example के तौर पे. Okay. Usually all the colors goes, but still some babies की skin में एक magenta tones होते हैं.
इट्स रेडनेस होता है, एक ब्लैकनेस भी होता है. ओके, सो आई ऑलवेज सी हाउ द बेबी की स्किन टोन कैसी है फर्स्ट. अगर बेबी इज सुपर फेयर देन आई गो विद द एनी कलर. ओके, बट आई डोंट पिक लाइक अ opposite color, like very dark colored I don't pick. I go with the subtle color. But with the wittish tone, I always pick a dark tone. But always I give a one tone of lighter shades. Okay, and I fix in the post production as well. ओके. Okay, raw images might not give a justice to that tone and skin tone and the color I pick, but it always I can correct in the post production. ओके. Yeah, so I don't mind any color I can use, but still some of that if magenta baby is there, the more of magenta tone in the baby is there, then I pick particular colors. ओके. सो बेसिकली आपने ऑलमोस्ट सारे कलर्स यू हैव यूज्ड जो यूज़ होने चाहिए. व्हाट आर दोज़ कलर जो शायद नोबडी शुड यूज़ इन Some चाइल्ड of color फोटोग्राफी? I never use. If you see all the my Yeah, that is what collection, I'm yes, asking. if you कि see all my collection, I don't use orange color. ओके. I don't use neon colors. Okay. Okay, that color tone I never use. ओके. Yes. ब्राइट. Yes, very bright color I never use because Okay. that give a dullness to your baby's skin. ओके. Okay, so I don't use that neon colors. ओके. और उसके अलावा एनी, इज देयर एनी कलर? उसके अलावा yeah, I use all the subtle colors. I Okay. like the pastel the most. I like white the most. You can see just Yeah, behind definitely. me. White is my most favorite color. Okay, I make sure my client get at least a one setup of white. राइट. Because white is the color it will be forever ever. वो कभी भी पुराना नहीं होगा. अगर आप 15-20 साल बाद भी देखोगे ना वही पिक्चर, that will give you like wow effect. So I always give one setup of white. आप जब कोई पिक्चर डिलीवर करते हो, यू टेक अ पिक्चर, तो व्हाट शुड दैट पिक्चर सर्व, या फिर व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ दैट पिक्चर? The one word I will say, pictures passes the generations. Right? It will pass the generations. Same with the album, keepsake, whatever it passes the generation. Picture should be like कि आज हमने क्लिक किया है वो हमें सिर्फ 2-3 महीने के लिए अच्छा नहीं लगना चाहिए. It should look forever and ever. So I maintain that consistency in my picture कि वो अगर आप भले 10-15 साल बाद भी देखोगे तो you will feel like wow, this is what like you get that wow wali feeling. Yeah, that's what I would say. So yes, I just make sure that कि मेरे पिक्चर्स में उतनी क्वालिटी रहे, वो कंसिस्टेंसी रहे कि वो फॉरएवर रहे. सो फिजिकली अगर बात करें तो न्यूबॉर्न्स आर सो मच डेलिकेट. तो किस तरीके की केयर आप लेते हो और लेनी चाहिए? See, newborn, they are very delicate, as you said, right? Very gentle, delicate. They need one warmth, okay? Not only physical, emotional as well, okay? So there are many things you need to be careful while taking a newborn photography because their bones are very fragile. So one should know that how to handle a newborn baby, how to pose them well. Then that only you'll get it if you get trained under the professionals. There are many things. Plus, apart from the photography, you need to careful with the environment as well. Because baby जैसे 10-15 दिन का बेबी मेरे वहाँ आता है, okay? So they need a warm environment. कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा टेम्परेचर रखना है, आई ऑलवेज आस्क टू फर्स्ट पेरेंट्स कि वो घर पे कौन सा टेम्परेचर रखते हैं, उनके बेबी को कौन सा. दैट कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स दैट लेट मी नो दैट मुझे कौन सा टेम्परेचर रखना है और ये बेबी कौन से टेम्परेचर में अच्छे से रहेगा. ओके, दैट्स द मेन थिंग. द सेकेंड इज हाइजीन, cleanliness. My each and every props is sanitized, okay, with the proper Dettol and Savlon, but I mostly use a Dettol to sanitize all the props. And because जब बेबी की स्किन को टच करता है, if it is not washed properly और अगर सॉफ्ट भी नहीं होगा, सो बेबी की स्किन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि दैट इज़ क्लीन एंड नीट. And second thing as well, I have a nails.
Okay, lot many people has pointed me out, how can you keep a nails when you are doing a newborn photography? Yes. But I always wear a gloves. Okay, that is the two benefit of wearing a gloves. That gloves is a cotton gloves. Okay, so it will protect me with the nails as well, and it will give the baby को direct skin to skin दे, उससे अच्छा है कि कॉटन क्लोथ्स से बेबी को टच करें. ओके, हमारे स्किन का एक टेम्परेचर होता है. कभी हमारा हाथ बहुत ठंडा होता है, कभी गर्म कभी होता गर्म है. होता है। ओके, सो अगर ठंडा हाथ हुआ और मैंने बेबी को टच कर दिया तो वो सडनली शेक हो जाएगा. सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज यूज अ ग्लोव्स. राइट। Yeah, so that all things I always make sure. व्हाट हैपन्स इफ ऐसे भी क्लाइंट आते होंगे ना कि जो थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव हो के संभालना बेबी को ही हो, तो वो हाउ डू यू हैंडल देम? एक्चुअली हाँ, आते थे पहले, अभी नहीं आते इतने, थैंक गॉड. अभी तो बस प्रियंका जो भी कर रही है कर लो. बट हाँ, बट इन द बिगनिंग डेज इट वॉज हैपन टू मी. बट आई एम अ मदर, यू नो, फॉर अ पेरेंट्स, फॉर अ न्यू मदर, अगर मुझे कहीं पे जाना हो फोटोग्राफी करवाने के लिए तो मैं फोटोग्राफर कौन है सबसे पहले इंक्वायर करूंगी कि वो कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, इज शी अ मदर और नॉट. मदर है भी नहीं तो भी वो कैसे मेरे बेबीज़ को रखती है. ओके, वो सब मैं पहले इंक्वायर करूंगी, उसके बाद बेबी दूंगी. अभी ऐसा हो गया है ना कि सब लोग आके आके प्रियंका है, हमें कोई टेंशन करने की ज़रूरत, लिटरली दे गो टू द अदर बेडरूम, वो सो जाते हैं. उनके जब हमारा टर्न आए तब बताना. सो दे फील लाइक प्रियंका के हाथ में है बेबी, हमें टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. So, एक्चुअली जो आपने पहले बोला ना कि यू टेक केयर ऑफ अ बेबी, तो वॉशरूम में भी व्हेन आई यूज्ड इट, देयर इज़ अ बेबी सेंटर, न्यूबॉर्न बेबी yes, के लिए जो अलग से सेंटर होता है जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है, उस टाइप का आपने वहाँ पे yes, बनाया हाँ, होगा। बेबी चेंजिंग इज देयर. हाँ, हाँ. सो यू हैव मेड दिस स्टूडियो वेरी थॉटफुली एक्चुअली। Yes, each and every corner you can see I बाहर have. Yeah. बाहर भी कहीं पे ऐसा नहीं है कि अनयूज्ड है, एवरीवेयर यू कैन टेक पिक्चर्स। Yes, I use each and every corner of my studio. Plus, I make sure all the facility, all the, you know, एक घर का environment मैंने दिया है स्टूडियो में. Even when you enter, you can feel that. You can feel that कि एक घर से दूसरे घर में आए हैं हम. राइट। Right? So मैंने इसी तरीके से बनाया. I didn't wanted to give a commercial look to my studio. It has to be a friendly, very friendly environment. थोड़ा कैजुअल टाइप। Yes, क्योंकि आई एम डूइंग अ बेबी फोटोग्राफी. ओके, इवन आई हैव इवन थॉट अबाउट द न्यू मदर एज वेल, बिकॉज वो आएंगे, दे नीड अ रेस्ट, दे कैन नॉट सीट कंटिन्यूसली एट माई स्टूडियो. ओके, सो उनके लिए भी हमने अलग से रूम बनवाया है. वी हैव एवरीथिंग फॉर बेबी. वी डू कीप अ क्रेडल्स फॉर अ बेबी. वी हैव हाँ, अ वो भी फीडिंग मैंने देखे। पिलोज भी फॉर अ न्यू मदर. वी हैव अ बेबी चेंजिंग स्टेशन. Even we keep wipes, diapers, हाँ, everything I we have seen keep. everything. Yeah, we keep everything. So जब भी वो लोग यहाँ पे आए तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ओके वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि ये रहेगा वो रहेगा. जस्ट रिलैक्स, just don't think about anything, you just relax, because new mother has gone through lot many c section हुआ है, normal delivery हुआ है, whatever it is. But the new mother, you know, that postpartum depressions and all we have heard about, they all need a environment ऐसा कि जो उनको पॉजिटिविटी दे, जो उनको रिलैक्स Right. फील करवाए. द एनवायरमेंट आई ट्राई टू क्रिएट इन माई स्टूडियो. न्यूबॉर्न की अगर बात करें ना, तो जैसे आपने एक चीज़ बताई कि कलर्स, स्किन कलर्स इफ़ेक्ट करते हैं, उस तरीके से और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक शूट के जो मतलब पर्टिकुलर के ये सेटअप, ये थीम, ये लाइटिंग के साथ ये जो जाना है, इस पूरी प्रोसेस में और कौन सी चीज़ें इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है? जैसे एक स्किन टोन आपने बोला कि वो कुछ हद तक इफ़ेक्ट करता है डिसीजंस में, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? जैसे बेबी अगर वो हेल्दी है या फिर थिन है, वैसी सब चीज़ें भी अफ़ेक्ट करती है? नॉट रियली, बट सम ऑफ थीम डज अफेक्ट, बट उतना नहीं करता है. ओके। सो इट्स डजंट मैटर कौन सा बेबी है, क्या कलर है. एंड एक और चीज़ के जैसे रैपिंग के टाइम पे ना, मैंने भी थोड़ा बहुत, कभी नॉट लाइक यू, Okay. बट रैपिंग के टाइम पे ना एक जो जब बेबी को रैप करते हैं
तो समटाइम इट फील्स लाइक इज इट टू टाइट, इज इट सफोकेटिंग और इज इट That's नॉट, the और technique. That's the that thing that you thing need to that thing learn. goes through my mind sometimes Yes. कि बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया, अगर बहुत लूज रख दिया तो एक्चुअली इट उसकी विल। एक टेक्निक है, बेबी का एयरवेज ऑलवेज ओपन होना चाहिए. Okay. ओके, सो वी रैप अकॉर्डिंगली. सो वो टेक्निक आप प्रोफेशनल से ही सीख पाओगे और प्लस एक्सपीरियंस से ही आएगा. Right. ओके, बिकॉज हम ऐसे ऐसे करके नहीं रैप कर सकते. इट हैज़ टू बी ए क्रिस क्रॉस. So crisscross will give you a V shape to a baby, and that airways will always be open. Okay. Okay. So even if you want to slide your hand, you can easily slide your hand. Okay. And the plus point is our wrap is 4-way stretch. हाँ. Even baby wants to stretch by themselves, they can stretch. It's not like too tight for them. Okay. They Right. can stretch their hand. So one should always use stretchable material. Oh, 4 obvious. ways. Yes, yes. Not 4-way. not only 2 Yeah, ways. the 4 first ways. step should be a 4-way stretch. This Okay. jersey material. There are a lot many. So how I will show this. I will show everything in video Yeah. just to give a perspective of how crazy this studio is. One thing I was अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में देर आर लॉट्स ऑफ ऑब्वियसली न्यू बॉर्न फोटोग्राफर्स, चाइल्ड फोटोग्राफर्स, बट अगर क्वालिटी वाइज कंपेयर किया जाए ना तो आपके लेवल की जो क्वालिटी यू प्रोवाइड उसके आसपास की जो क्वालिटी है ना वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग ऑपरेट नहीं करते. व्हाट कैन बी द रीज़न? Because when you like seeking for a quality, it's always expensive. Okay. So whatever I invest, all the quality props, it's really expensive because most of the stuff you can see, all the newborn wraps and fur and everything I order from the USA. So when you order from abroad or wherever, not in only USA, when you order from abroad, first you have to pay in the dollar. Okay. The second thing, shipping to India. The third thing, यहाँ पे आ तो जाता है but custom 45%. And I have paid that. So I know that. So end of the, this all the process, you invest a lot of stuff. Okay. Just why? Just to get a proper quality result. Right. End product. Okay. सो ये सब आई डोंट नो सब करते होगे कि नहीं, बट मेरा फोकस पहले से ही था कि आई वांट टू गिव अ प्रॉपर क्वालिटी. इट शुड लुक क्वालिटी इन माय पिक्चर्स, माय each and every photographs. That richness, that neatness, I can say richness, neatness, proper color, texture, which we might not get it from here. Okay, अब यहाँ पे मिलने लगे हैं. There are lot many prop vendors who does deliver good products, but still my eyes always seeking for that आई quality. फील लाइक कि आपका जो वर्क है ना, इवन अगर आप सिर्फ वाइट क्लॉथ के ऊपर भी बेबी को लेटा के इफ़ यू टेक अ पिक्चर so it will stand out. So I don't think the props are always the issue. That is a entire procedure. Yeah, that is what I'm That asking is you a na, कि entire. what could be the It reason? start from that process. Start from the beginning. Okay. Okay. Till the end. अगर पिक्चर्स तो सबके मे बी सेम आएंगे, क्लिक करेंगे, बट उसको किस तरीके से एडिटिंग में आपको मोल्ड करना है, दैट यू शुड हैव दैट नॉलेज एज वेल. Okay, so right knowledge of the post production editing, that matters too. Let's move on to toddlers. Toddlers. Yeah, Okay. toddlers. I don't know. Toddlers or sitter baby, what should I say? No, seater till 1 year, Okay. and after 1 year they enter in the toddler session. Okay. Yes. So I should say sitter baby, right? Seater That is baby. the right. Yeah. Okay. Seater baby is still good. Okay. Toddler is different. We can talk about toddler as well. Toddler is the like the They're craziest running here and there, and you are running behind them. craziest prajati of humankind. 1 to 3 age. Yes, actually, age 1 to 3 is the craziest Actually. prajati of human. that is called too cute and too हाँ. terrible as well. हाँ, मार भी नहीं सकते और समझा भी नहीं सकते. Exactly, I know. They are non-predictable. Yes, like exactly. You cannot at all predict them. और अगर पेरेंट्स मुझे बोलेंगे माई बेबी विल अमेजिंग, बहुत अच्छे से कराएगा, वही बेबी नहीं कराएगा. और जो बोलेगा ना वो बैठेगा भी नहीं एक जगह पे, वो किसी की बात नहीं मानता है, वो आपकी बात अच्छे से मानेगा. मीन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट टोडलर हाँ. बेबीज एट ऑल. कुछ मना करके देख लो. हाँ, आई नो. They will definitely do it. Yes.
but somehow I love to capture toddler. ओके The reason is there because I become baby with them. ओके जैसे ही वो एंटर होता है मैं सबसे पहले उनको एक्सप्लोर करने देती हूँ. लेट देम एक्सप्लोर स्टूडियो में. मुझे पता चले, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेती हूँ. अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आई गेट टू नो कि उनको किस तरीके से हैंडल करना है, किसको किस तरीके से. ओके, मैं एक बार मम्मी को पूछ लेती हूँ कि कैसे स्ट्रेंजर एंजाइटी है कि नहीं, ब्ला ब्ला वो सब मैं पूछ लेती हूँ. और वी हैव लॉट मैनी टॉयज, वो अंडर द वहाँ पे छुपे हुए हैं. या आई नो, अगर गलत टॉय भी उसने उठा लिया तो थीम में नहीं जाएगा ना, वो भी होता है ना. हमने सब अलग अलग टॉयज रखे हुए हैं. Okay, अच्छा. Okay, जो थीम के फोटोशूट करने हैं उसके भी रिलेटेड टॉयज रखे हुए हाँ. हैं. तो हमें पता है कि कौन सा टॉयज कब देना है, राइट. और कब वो वाव वाली इफेक्ट आएंगी, वो एक्साइट होंगे और मुझे कब कैप्चर करना है. आई ऑलवेज बीन बेबी विद देम. मैं अच्छे से उनके साथ खेलती हूँ. पहला तो सेशन हमारा वो सिर्फ खेलने का ही होता है, हम यहाँ से वहाँ भागते हैं. देन दे बिकम अ फ्रेंड टू मी. हाँ. उनको मैं अच्छी लगने लगती हूँ. राइट. तब वो मेरी बात मानने लगता है. Okay, same with my assistant are very good with the baby. Okay, so You need at least 2 people I when you are need 2 doing people. toddler. One is always behind the baby just to look after them कि किसी कहीं पे लग न जाए. गिर न जाए. सीटर भी है, अगर बैठा है तो वो गिर न जाए. तो one is always looking only to baby. That is the best thing. Like मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है, उनकी सेफ्टी. ओके, सो सबसे पहले तो वो एक पर्सन होगा, वो सिर्फ बेबी को देखेगा. एक होगा जो मेरे पास रहेगा, जो इधर उधर दौड़ेगा और हंसाएगा. ओके, कभी कभी मैं भी कर देती हूँ वही चीज़, बट अगर मैं नहीं कर पाई तो एक पर्सन ऑलवेज मेरे साथ रहता है. सो अगर मतलब किसी को ऐसा है ना कि बहुत 1-2 साल 3 साल वाले बच्चे किसी को नहीं पसंद आते ना, तो दिस जॉब इज डेफिनेटली नॉट फॉर देम. You need a patience to handle a toddler. So You we need have a basically 3 patience. categories. One is like newborn. First is a maternity. First comes a maternity. Yeah, we are coming back to that. But Okay. In terms of children, एक newborn है जो कि जिसकी ideal age क्या होनी चाहिए? 5 to 15 days. 5 to 15 5 days. to 15 days. Then we have sitter baby. Yes. Who are Seater is 7 to 11 months. 11. 12 months. मतलब जब बैठना स्टार्ट जब किया हो बैठना that स्टार्ट करता है तब तक, जब मैच्योर बैठ जाते हैं तब तक. बिकॉज 12 मंथ्स में बेबी भागना स्टार्ट कर देता है. then they are कोई then baby. there's this That third prajati. that प्रजाति. Yes, exactly. 1 to 3 years. हाँ, किसी से डरते नहीं और मार उनको सकते नहीं या बोल भी डांट भी नहीं कुछ सकते. भी नहीं कर सकते. So that is the crazy one. Yes. So वो अपने खुद के मालिक होते हैं. हाँ. वो मैंने आजकल के बच्चों में एक और चीज देखी है, ये 2 साल से मैंने देखी है. दे आर वेरी स्टबर्न. yes. दैट स्टबर्ननेस मैंने पहले नहीं देखी थी. You know, Okay. even I'll tell you about my kid. He's 3 years old. So if I tell him के ये नहीं करेगा ना, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा, नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. He's like नहीं चाहिए. मैंने बोला भाई कहाँ से आ रहे हैं? उनको लालच तो पता ही नहीं है नहीं. क्या है. उनको जो करना पता है वही देगा ही, करेंगे. कहाँ जाएगा, बाप है. आई They're डोंट like नो that. वो क्या द टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया Yeah, है हमें तो. exactly. सीरियसली अगर आप ना बोलोगे ना, वो ऐसे लेटेंगे यहाँ पे, हाँ. अपना सिर ऐसे ऐसे हाँ. करेंगे. उनके अरे आपको ही लगेगी यार, खुद को ही वो- लगेगी, मत करो. बट नहीं, हाँ. मुझे तो Protest करना ही चालू. है. यस, मुझे तो करना ही है. सो उनको उनकी तरह से हैंडल करना पड़ता है. बट इट्स अ फन. Yes, definitely. हर एक बच्चा अलग अलग है. Definitely. कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत लाइक शैतान है. बट आई लव टू कैप्चर ऑल दोज मोमेंट्स. इवन मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि ऐसा करता है ना आपका बच्चा, इट्स ओके, लेट देम एंड लेट मी फ्रीज दोज मोमेंट, बिकॉज यही आपको याद रखना है कि यू आर डूइंग दिस एट दिस एज. Yes. दैट इज द मेमोरीज. Definitely. अगर रोता है पूरे सेशन में, रोने दो, इट्स हाँ. ओके. कुछ तो मिल जाएंगे. हाँ, ओके, बट definitely. रोने के पिक्चर तो एक तो लेना ही आपको, लेना ही, बिकॉज लेना ही. दैट्स अ मेमोरीज. आपको याद, हर एक पिक्चर एक स्टोरी बताता है, राइट? सो वो स्टोरी आपको बतानी है, वो ही बड़े होके आपको बोलना है कि सी वी ट्राइड बट यू आर डूइंग दिस. Right. राइट? सो कोई स्टोरी होनी चाहिए ना. आप 5-6 साल बाद एल्बम ओपन करो, पिक्चर्स पेन ड्राइव में देखो कि वो रो रहा है, ये कर रहा है. दैट्स फाइन, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कैप्चर अ ब्यूटीफुल मोमेंट बट यू आर डूइंग दिस. हाँ. या सो इट्स ओके. न्यूबॉर्न का एक फोटोग्राफी का जो स्किल सेट होता है
और टॉडलर या फिर सिटर बेबीज़ का जो स्किल सेट होता है, तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं ना? यस। एंड कैन यू एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट? पहले तो कॉमन बता देती हूँ। सब में एक चीज़ कॉमन है, पेशेंस। ओके ओके। सब में एक चीज़ कॉमन है, पेशेंस। बट वो पेशेंस अलग अलग है। लाइक न्यूबॉर्न में वो रो भी सकता है, वो काम भी है, और वो जग भी सकता है. While newborn, I want a very sleepy baby. Okay, very, very sleepy baby. That's the reason I prefer to, come around 5 to 15 days. I Okay. always ask to parents to, that's the ideal age to capture a newborn baby photography, because they are very like little, plus they're not a touch sensitive, they are very good sleep pattern. So that's the reason I always ask to come न्यूबॉर्न्स around that. यूजुअली 16 टू 20 आवर्स सोते हैं ना? यस, है ना? वो हर एक दिन अलग अलग ओके। चेंज होता है, हर फिर एक वो दिन बढ़ता चेंज होता कम है, कम हो जैसे जाता जैसे है। बढ़ता जाता है. यस, स्लीप पैटर्न कम होती जाती है, प्लस सेंसिटिव हो जाता है, प्लस वो अपने एनवायरनमेंट में सेट होते जाते हैं. सो एनवायरनमेंट में जब सेट होंगे ना, तो लाइक जो फ्लेक्सिबल, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी, वो में कैसे इतने में आ जाता है. ओके, सो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दिन पर दिन कम कम होने होती जाएगी. सो दैट्स द रीज़न न्यूबॉर्न जितना छोटो बेबी लेकर आओगे उतना ब्यूटिफुल इमेज आएंगे. इवन आई हैव शॉट 6 days बेबी इन माई स्टूडियो. ओके, लाइक 4 दिन में हॉस्पिटल में से छुट्टी थी, एक दिन घर पे रह के 6th day they were here because they wanted to capture that all the beautiful and possible poses. So yeah, if you want a beautiful quality and proper poses, then come around 5 to 15 days. So that's in the newborn. Okay, हमें चिल्लाना नहीं है. There is a हाँ, you don't have to very shout. shant atmosphere in the newborn. That's environment I get in newborns. In the seater, there is a 6 months, 7 months, 8 months. All the months are different. Okay, 7 month, 8 months baby is amazing, very good. एक जगह पे बैठा रहता है, बिकॉज क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं की होती है, तो बहुत अच्छे से पिक्चर्स आ जाता है. ओके, बट जैसे क्रॉल स्टार्ट किया, बेबी भाग के यहाँ गया, बेबी भाग के वहाँ गया. सेम विद द सीटर, अगर चलना स्टार्ट कर दिया तो भाग के यहाँ गया, भाग के वहाँ गया. ओके, सो यू नीड अ पेशेंस टू कैप्चर देम. ओके, यू नीड दैट विजन एज वेल, कि कौन से बेबी को मैं ऑन द स्पॉट भी कभी कभी थीम चेंज कर देती हूँ. मुझे पता चल लगे कि ये बेबी एक जगह पे बहुत क्रॉल कर रहा है, एक जगह पे बैठेगा नहीं, तो आई हैव ऑल द प्रॉप्स, यू कैन सी. ऐसे ऐसे प्रॉप्स है, बिठा दो, वो हिलेगा ही नहीं. थोड़ा वहाँ पे इंटरेक्टिव हो जाए बेबी उसके साथ। Yes, yes. So, plus you have to have all the toys जो बेबी को अट्रैक्ट करें. Okay, so all those things that is in the seater. Same with the toddler. Toddler, you need a different kind of props, different kind of patience level, and different Maximum. yes, The highest level you Yeah. can have. हम लिटरली पागल बनते हैं. Yeah, सीटर that is what, सेशन ना. के BTS मैं कम रखती हूँ. द रीजन इन ऑलवेज कि कैमरा के पीछे हम जो हाँ, हंसाते हैं ना, अगर किसी ने वो देख लिया ना, तो वो हंस हंस के पागल हो we are जाएंगे. not leaving our kid to that person who is doing this crazy thing. वी लिटरली बिकम लाइक वो जंगल से आए हुए होते हैं ना, हम ऐसे दिखते हैं. एक बाल ऐसे करता होता है, हाँ. क्योंकि बेबी ऐसे ऐसे में ही हंसते हैं. अगर आप कुछ फनी चीज करोगे तो बेबी स्माइल करेगा. 2 सेकंड पॉज नहीं ले सकते. इफ यू टुक अ पॉज ऑफ 2 सेकंड दे विल लुक समवेयर एल्स. हाँ, कोई कोई बेबी ऐसा होता है, मेरे वहाँ आता है, आप कुछ भी कर लो वो ऐसे ही बैठेगा. कुछ भी कर लो, कुछ भी कर व्हाट डू लो. यू डू इफ अ बेबी इज लाइक दिस? हम वी जस्ट कीप ट्राइंग. एक मोमेंट तो आता है जिसमें हंस लेता है. वी जस्ट गिव अ इनफ ब्रेक. कभी कभी बेबी भूखा होता है, फीडिंग ब्रेक चाहिए. कभी कभी बेबी को वो एनवायरनमेंट शायद से नहीं अच्छा लगे. सो मैंने आपने देखा कि नेचुरल लाइट के भी मैं बाहर भी काफी बाहर भी चीजें कर हैं. सकते हैं, नीचे गार्डन में भी मैं कर सकती हूँ. इवन दिस इज द बेड सेटअप. बेबी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे अराउंड कुछ चल रहा है. ओके, सो आई जस्ट लेट बेबी अलोन इन दैट थिंग, एंड आई जस्ट सी कि वो किस तरीके से, वो ऐसे तो कब 3-4 घंटे तो नहीं बैठ सकता है. ही विल रिएक्ट, राइट. सो वो जहाँ पे भी रिएक्ट करे, आई कैप्चर दैट मोमेंट. Yeah. Okay. So end of the session, I always give a most beautiful, all kind of expressions to client. और सिटर बेबी और टॉडलर्स में ही एक्चुअली एक्सप्रेशन बहुत वेरिएशन में मिलते हैं. Yes.
अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेइंग थिंग के उनके साथ खेलो या उनको किसी तरीके से रिएक्ट कराओ, ऐसी कुछ टिप्स दीजिए जिससे और इजीली, या कुछ ऐसी ट्रिक्स होगी छोटी छोटी जिससे उस सिटर बेबी या टॉडलर बेबी को आप अच्छे से मैनेज कर पाओ, या एटलीस्ट उनका जो सेशन है वो अच्छे से कर पाओ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, ओके वो अंदर से ही आता है. हर एक बेबी अलग अलग होता है. Okay. प्लस स्टडी द बेबी, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहचानो. ओके, वो बेबी को किस में इंटरेस्ट है वो पहले देखो. कोई कोई टोडलर बेबी होता है वो सॉन्ग से बहुत कनेक्ट होता है. मैं एलेक्सा यहाँ पे रखती हूँ ऑलवेज. आई हैव सीन दैट, हाँ, वो बेबी के लिए ही है. बेबी शार्क, ऑल द राइम्स यहाँ पे कंटिन्यूस चलती है. मैं पेरेंट्स को पूछ लेती हूँ कि क्या चीज़ बेबी को अट्रैक्ट करती है. ओके, आई ऑलवेज दिस, एज आई सेड, मैं पेरेंट्स से सबसे पहले ये सब पूछ लेती हूँ. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स. यू आर पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. येस, इट इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस दैट आई कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स. तो मुझे एटलीस्ट उनका बेबी क्या है, कैसा है, पता चले. ओके, अगर वो बोलेंगे कि उनको स्ट्रेंजर एंजाइटी है तो मैं मेरी जो असिस्टेंट है उनको छुपा दूंगी, मिनिमल पर्सन रखूंगी. yes. कभी कभी ओके, मैं एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगी. जब मैं घर से काम कर रही थी, मेरा एक छोटू सा रूम था जिसमें मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था. दैट वाज नॉट अ ह्यूज स्टूडियो. सो एट दैट टाइम आई हैड अ ट्विंस, एंड दैट ट्विंस वर लाइक, मुझे देख, राइट आफ्टर कोरोना, आई कैन से राइट आफ्टर कोरोना. ओके, कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन को देखे वो स्टार्ट क्राइंग एंड स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग. ओके, हमने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया सेटलमेंट में, बट दे वर नॉट रेडी टू. ओके, देन व्हाट आई एक्चुअली डिड, मैंने सारे सेटिंग्स कर दिए. पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे. अगर अच्छा. रूम से हम बाहर निकल जाए, दे वर वेरी हैप्पी. द मोमेंट मुझे देखेंगे, हाँ. किसी को भी देखेंगे, मम्मी पापा के अलावा किसी को भी देखेंगे, they They start start crying. crying. Okay, 2 घंटा दिया, नहीं हुआ. देन मैंने सारे सेटिंग करके पापा को बोले कि जस्ट क्लिक, और कुछ भी नहीं करना है. ओके, 1-2 क्लिक किए. ओके, बट एंगल्स तो उनको नहीं पता हाँ, होता हाँ. कि क्या करना है, वाइड लेना है, क्या लेना है, नहीं पता चला. उन्होंने मुझे दिखाया कि आई वाज लाइक दैट्स फाइन, लेट मी जस्ट फॉलो यू. ओके, सो वो आगे थे, मैं उनके एग्जैक्ट पीछे थी. ओके, उन बच्चों को पता ही नहीं था कि आई वाज देयर. तो मैं शोल्डर से एंगल दे रही थी, हाथ से एंगल ले रही थी. ओके, सो somehow I captured really beautiful moments of that twins. So that parents is still thankful to me that, oh my God, the thing we have created that day, all the mess, but still the memories you have given for my kids, it's amazing. So you have to get creative Yes. about taking a picture as well. Yeah. How do you are? So this is a kind of handle a baby. आपने जो Yes. बोला था क्रैंकी बेबीज को किस तरीके से Yes. हैंडल करते हैं, सो वो भी हमने किया हुआ है इसे. सो हर एक बेबी अलग अलग होता है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो आप खुद डिसीजन ऑन द स्पॉट ले सकते हो. सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर ट्रिक, जस्ट पेशेंस एंड एक वे ढूंढो कि क्या कैसे कर सकते हो आप. What is working? येस, व्हाट इज वर्किंग. कभी कभी ये वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है. सो यू हैव टू फाइंड दैट थिंग कि क्या वर्क करेगा. So newborn में how much time do you take for just shooting a newborn? 2 hours, 2 to 2 3 hours. hours. And That's with a max. parents? Yeah, including a baby feeding break and everything. Yeah. 2 hours. Yeah, 2 to 3 hours. It's depend on even the baby as well, because some babies are They very get exhausted sleepy. as well, na? If we like just keep wrapping them or keep. But I changing the don't clothes. keep. I always give a variations. My Okay. workflow is completely different. Okay. Okay. So I always follow a workflow in each and every photography, not only a newborn photography. Okay. So my workflow is always taking baby's solo pictures in all the variations, and then I give a little break, and then I start a parents. Because Okay. after break they'll be more energetic, and especially seater and all, so they give a good expressions. Even in the newborn I always start with all the different kind of half poses, half wrap, then outfits wale pictures and nude pictures and all. I always go with that, and then I wrap them. So Okay.
before start wrapping, I always check my time. Okay, because maximum you can keep 1 or 1.5 hour in that wrap. उनको Yeah. रैपिंग में 1 घंटा 1.5 घंटा Yeah, ही रख सकते एक हैं. घंटा. So you have to be very quick and proper. You have to use those time wisely ओके. rather than experimenting. Okay, जो भी करना है फोकस करो, वही इतना ही करो. एंड देन सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विद फॉर अ शूट एज वेल, कि आपको कौन से पोजेस करवाने हैं. और पोजेस डिपेंड होता है पेरेंट्स को देख के, वो पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज सारे पेरेंट्स अलग अलग होते हैं. साइज अलग होती है, हाइट Body अलग type होती है, अलग होता है, बॉडी height टाइप अलग अलग होती होता है. है, राइट. सो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है. सो यू हैव टू डू होमवर्क बिफोर शूट. why you are like जो विदाउट रैपिंग वाले पिक्चर्स है, why do you do it बिफोर before then? आफ्टर रैपिंग बेबी की स्किन बहुत जेंटल होती है, बहुत डेलिकेट होती है. आप ऐसे भी टच करोगे ना तो वो रेड हो जाएगा. Right. दिल बी लाइक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. हाँ. ओके, जब रैप करते हैं हमारी जो रैपिंग की पोजीशन होती है, ओके, दैट इज़ लाइक वोम में जो बेबी होता है ऐसे, और लेग्स भी क्रॉस. ओके, सो उस तरीके से हम रैप करते हैं. जब रैपिंग ओपन करते हैं तो उनके बॉडी में वो रैप्स के मार्क्स होते हैं, एंड दैट मार्क्स को निकलने में 10-15 मिनट और 20 मिनट्स तो लगता है. सो आई कैन नॉट गिव दैट ब्रेक. ओके, सो फर्स्ट जब वो आते हैं तब उनकी स्किन बहुत ही काम और विदाउट एनी मार्क्स होती है. सो आई ऑलवेज स्टार्ट विद दोज वर्क फ्लो एंड देन आई रैप, बिकॉज आप वंस मैं रैप ओपन करूँगी सारा शूट फिनिश हो गया होगा मेरा. Right, makes sense. यस, और वो उठ भी जाएगा. जब मैं रैप ओपन करूँगी ना, जब बेबीज़ को रैप करते हैं तो वो वोम वाली फीलिंग आती है उनको. Right. सो वो थ्रू आउट स्लीपी रहते हैं, इनफैक्ट डीप स्लीप में चले जाते हैं. ओके, सो जब रैप मैं ओपन करती हूँ तब बेबी को ब्रेक चाहिए, फीडिंग ब्रेक भी चाहिए, एंड वो मे बी उठ जाएगा. सो वापस से सुलाने में टाइम लगता है, right? It takes another half an hour or more than half an hour. So that's the reason the wrapping is always the last thing. So आपका जो एक थर्ड वर्टिकल है दैट इज़ अबाउट मैटरनिटी. Yes. तो आपका जो थिंकिंग है मैटरनिटी शूट को लेकर के, व्हाट इज़ इट? First of all, that is that is the most amazing news they get. Their life, right? That's an incredible journey of motherhood they're going to experience. That just think about that feeling, that first time they heard about what they are going to be a parents. It has to be captured. That moment has to be captured. It's an emotional thing to new parents, as well as they are very like kind of protective to each other. वो एक अलग केयर, लव, अफेक्शन जो आता है ना, वो प्रेगनेंसी के बाद आता है. ओके, Right. एक ग्लो, एक दूसरे की तरफ जो अलग, वो लव जो होता है ना वो अलग ही होता है. सो वो मुझे कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है. दैट प्योर मोमेंट ऑफ द लव एंड जॉय with their unborn child. Okay, the connection with the unborn child, it has to be captured. एक चीज़ ये भी होती है ना कि उस टाइम पे जो यूजुअली गर्ल्स है उनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी ऑब्वियसली. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज ऑब्वियसली कुछ क्लाइंट्स थोड़े कॉन्शियस हो जाते होंगे अबाउट देयर अंडर चिन एंड ऑल दैट. डज इट हैपन? It does happen like every day. Okay. Okay, so That's fine. For me, I know how to capture their angle. Okay, how to make them beautiful. Okay, not only physically, even the emotionally, that connection with the unborn child. Okay, the connection with the bump. That so I always say them, just be relax. Okay, don't think about your extra fat, double chin. Just don't think about, leave everything up to me. Okay, I know the angle how to make you beautiful. Okay, so leave it on me. So I always make sure they pick proper attire to their body. So always client leave it up to me, that
you can pick better for me. So I have all kind of gowns, okay, all size of gowns, all kind of gowns. I always ask for their own comfort zone as well, because some mother might want to show off, some mother might not want to. Okay, so that comfort zone is the first thing I need to ask, and Right. how comfort they are. Then only they'll give a beautiful poses and the expressions to me. ओके, सो सबसे पहले मैं वही एक कंफर्ट, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ कि उनको अच्छा लगे. Okay, they, then only I'll get a good expressions, Right. I'll get a good end result. Okay, so forget about all that extra facts. All I would feel, that's a beauty, that's a enjoy this moment. Even आपको भी याद रहना चाहिए. 9 months of cheat days. आपको भी याद रहना चाहिए कि आप कैसे थे. ओके, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ जर्नी. अगर मैं स्लिम एंड ट्रिम दिखा दूंगी उनको, दो वो नहीं है. ओके, एडिटिंग में मैं दिखा भी सकती हूँ, अगर दिखाना है तो मैं दिखा सकती हूँ, बट मुझे नहीं दिखाना है. थोड़ा बहुत शेपिंग इज रिक्वायर्ड, बट नॉट मोर, क्योंकि दिस इज फॉर योर मेमोरीज, योर ओन मेमोरीज. सो जस्ट कीप इट, जस्ट लीव इट एज इट इज, कि आप जो हो वो ही रहो. ओके, बट आई नो स्टिल कैसे ब्यूटीफुल दिखाना है उनको. What is your usual process of shooting a maternity? Like concept design किस तरीके से करते हो? How do you decide themes and colors and all? So about maternity, I have categorized 3 or 4 kind of package to my session. Okay, so उसमें से उनको पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या मिलने वाला है और Okay. मुझे क्या चाहिए. मैंने Right. उसमें ही कैटेगरी दे दी है उनको. किसी को आउटडोर चाहिए, सो उसमें भी है इंक्लूड इंडोर किस में है, आउटडोर किस में है. अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी मैंने कैटेगराइज करके रखा है. दे कैन टॉक टू मी, they can talk to me regarding their story, what they want, and then I draw the pattern and then we create that. Just an example, कल का ही पिक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो that was पूरा ट्रेडिशनल था, using a peacock feather and all. So that attire was their own wedding attire. They Right. wanted to use that touch of their wedding attire in the maternity session. So I always follow that as well, but in my vision, not into their vision. Okay, And also you try to make it personalized. sometimes, yes, yeah. And basically in the maternity shoot I always go with the subtle colors as well, because that is, again, as I said, in all of my pictures that passes a generation, so one setup has to be my own. उनको पसंद हो कि ना हो, मुझे देना है. Your call, मुझे yes. उतना, हाँ, उतना पता है कि एक सेटअप ऐसा मुझे देना ही है सटल उनको. कई क्लाइंट होते हैं, नहीं ये कलर मेरे पे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है. एंड देन आई वाज लाइक, यू जस्ट वेयर दिस, I'll just show you a picture and then you can just give me your suggestion. मैं जब भी पिक्चर दिखाती हूँ, they were like, oh my god, wow, this is amazing. So you have to have some level of authority if you want to deliver good quality. Definitely you have to, then only you can maintain that consistency. Yes. Your own creativity. आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि यू लाइक माई पिक्चर. आपको Right. मेरे पिक्चर क्यों पसंद लगे? क्योंकि उसमें मेरा विजन है, उसमें मेरी क्रिएटिविटी है. अगर मैं आपकी क्रिएटिविटी से जाऊंगी तो मुझे खुद को ही नहीं पसंद आएगा. जस्ट एन एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक क्लाइंट था, मुझे बटरफ्लाई विंग्स करना है और मुझे पीछे का बैकग्राउंड ऐसा चाहिए कि मैं तारों में हूँ और कहीं क्लाउड्स में हूँ. जो पहले चलता था उस टाइप. पहले चलता था. लाइक मैं ऐसा नहीं करती हूँ. मैं, अगर आपको दिखाना है, मैं मेरी तरीके से दिखाऊंगी, वो आपको सालों के बाद भी अच्छा लगेगा. सो योर विजन हैज़ टू बी देयर, योर Right. विजन हैज़ टू बी देयर. इवन मैंने ये जो सेटअप देख रहे हो आप, वो हर महीने में चेंज होता है. Okay. या आई चेंज एवरी मंथ, बट सटल कलर्स ही रहते हैं, बट आई चेंज इट एवरी मंथ. अभी इट्स look of ऑल it, वाइट हाँ. वाइट वाइट. Yes. सो सेटअप मैं मेरी तरीके से करती हूँ, और माइन इज पर्टिकुलर आउटफिट टू वेयर विद दोज सेटअप. आई डोंट अलाउ टू यूज एनी अदर कलर्स. हाँ, ओके, because सो तो वो कलर जाएगा. पैलेट ऑलवेज मैटर्स अ लॉट, कि आप कितने कितने कौन से कलर्स यूज करते हैं. देर आर लॉट मैनी मोनोक्रोमेटिक थीम you follow, and there are lot many other themes,
the color palette. So Can you give example of some, just one or two? just a monochromatic. So in the Yeah. monochromatic, you use Black, tint white, and gray. shades. No, light shades to darker shades. Okay. Okay, any color you can pick. Example, let's pick a blue color. Okay, in the blue color, you can pick a lighter shade till the darker shade. You can yeah. use any colors with that. Yes, so there are like 4. अभी तो बोहो भी चल रहा है, बोहो हाँ. पैलेट. ओके, सो बोहो पैलेट में भी एक कलर पैलेट है. हाँ, So you brown have and to, beige yes, and all. yeah. So light white से लेके डार्क चॉकलेट के बीच में जो भी कलर्स आता है, दैट फॉल्स इन द बोहो. उसमें भी क्रॉस कलर्स है जिसमें यू कैन ऐड ग्रीन कलर इन द पैलेट. हाँ, ओके, light बट दैट green. नॉट अ ग्रीन, ऑलिव कलर्स, हाँ, olive ब्रिक and- कलर्स. yes. ओके, सो पहले तो उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कलर पैलेट को जाता है, एंड देन यू कैन गो फॉर इट. और just give me some do's and don'ts if one is doing a maternity photography. Just give me some random do's and don'ts, whatever comes to your mind. I don't know how to say do's and don'ts. You have to go very deep inside for all this knowledge, okay? अगर ऐसा मैंने knowledge फिर दे कोई दिया ना, कमेंट में लिख देगा. अगर ऐसा मैंने knowledge में दे दिया ना, तो हम 2 दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे. कमेंट में कोई लिख देगा कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा I know. So people are so, sometime even if I upload a reel from a podcast, people are just like, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, तुम कुछ भी बोल रहे हो. भाई तू पहले पूरा पॉडकास्ट देख ले, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं. हाँ, आई हैव टू मेक इट अपीलिंग. इफ अगर रील में बना रहा हूँ तो आई हैव टू मेक इट दैट वे दैट पीपल विल इंटरेक्ट विद प्लस इट. इसमें क्या होता है, सबका अलग अलग होता है. हाँ, मैं इस तरीके का, सो दैट इज माई स्टाइल, दैट Yes. इज माइट नॉट योर स्टाइल. यू कैन Definitely. नॉट कंपेयर विद दो स्टाइल. अगर आपको अपनी स्टाइल से पसंद है तो यू डू योर्स, बट Yes. एटलीस्ट डोंट जज एंड डोंट गिव एनी कमेंट्स ऑन दैट अदर स्टाइल्स. हाँ. सबकी स्टाइल अलग होती जस्ट है. यूज योर थंब एंड स्वाइप अप. एग्जैक्टली, यस. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सम जनरल थिंग्स नाउ. अभी तक आपने जितने भी शूट्स किए हैं उनमें कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ सम चैलेंजिंग शूट्स काइंड ऑफ थिंग्स आई लाइक थिंक हमारी बात हो गई एक चैलेंजिंग शूट की तो. अबाउट दैट किड. अबाउट दैट ट्विंस किड आई टोल्ड यू. अपार्ट फ्रॉम दैट कैन यू गिव मोर एग्जांपल्स लाइक दैट. जस्ट कुछ ऐसी चीज जो सोची है नहीं हो रही है, देन व्हाट चैलेंजिंग तो नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक एक्सपीरियंस हुआ है. अच्छा. ओके, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी. जब मैं घर से काम कर रही थी ना, आई थिंक ये 3 साल पहले की बात है. ओके, एक क्लाइंट मेरे पास मैटरनिटी शूट के लिए आया था. ओके, और दैट वाज अराउंड दिसंबर टाइम, और आई वाज डूइंग बैक टू बैक शूट्स बिकॉज वो सीज़न हमारी बहुत पैक रहती है. ओके, आई वॉज डूइंग बैक टू बैक शूट. सो 3 साल पहले की बात है. तो माई डॉटर वो 1 साल की थी तब. ओके, सो मैं भी उसके पिक्चर्स लेती थी बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो वो मैटरनिटी क्लाइंट रेडी हो रहा था दूसरे रूम में. मेकअप आर्टिस्ट उनको रेडी कर रहे थे. एज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, वही टाइम था 1 घंटे का. मुझे लगा मैं क्विकली मेरी डॉटर का शूट कर लेती हूँ, क्रिसमस का. ओके, सो मैंने क्विकली क्रिसमस का शूट किया, एंड वो शूट फिनिश भी हो गया था ऑलमोस्ट. वी वर जस्ट वाइंडिंग अप, क्योंकि वो छोटू सा रूम था, तो दूसरा शूट करने के लिए मुझे वाइंड अप करना पड़ता है. सो वी वर जस्ट वाइंडिंग अप एवरीथिंग, एंड वो जो क्लाइंट थे वो आ गए स्टूडियो, वो रूम में, कि शूट स्टार्ट करना है. वी वर वाइंडिंग अप, सो वी जस्ट आस्क्ड देम टू सीट फॉर अ व्हाइल, 10-15 मिनट until we wind up everything. कि कर दिया हमने, शूट भी कर दिया. दैट शूट बहुत अच्छे से हुआ था, लाइक अमेजिंग. ओके, पिक्चर्स भी डिलीवर कर दिए मैंने. वो क्लाइंट ने बोला, तब तो मेरे पास आउटडोर कुछ भी नहीं था, मैं घर से कर रही थी, बट उन्होंने बोला मेरे पास वो प्रीमियम पैकेज लिया हुआ था, तो उनको आउटडोर चाहिए था. मैं किसी के घर ले गई थी आउटडोर शूट करवाने के लिए, वो भी हो गया. ओके, पिक्चर्स भी डिलीवर कर दिए हमने, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. एंड देन सडनली ये दिसंबर में हुआ, मैं यूएस थी 2 साल पहले, एंड पिंग हुआ गूगल पे मेरा रिव्यू. हाँ, 1 साल के बाद. हाँ, 6 महीने बाद. ओके, 6 महीने बाद गूगल रिव्यू पिंग हुआ विथ 1 स्टार. एंड आई वॉज लाइक, वाई, कौन है ये? ओके,
अभी भी है रिव्यू ओके वहाँ पे रिव्यू में लिखा हुआ था कि दिस इज लाइक टोटल कुछ भी नहीं है इनके फोटोग्राफी में, इट्स अ फेक फोटोग्राफी एंड ब्ला ब्ला, सब नेगेटिव लिखा हुआ था कि हमने प्रीमियम पैकेज लिया था फिर भी वो हमारे टाइम पे उनकी डॉटर का शूट कर रहे थे. Oh my. Yes, and everything has been written in the review. So वो मेरे साथ एक ऐसा हुआ. So मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे क्लाइंट को पता है हाउ आई एम विथ माई क्लाइंट, ओके. एंड इट वॉज माई डॉटर शूट. आई वॉज डूइंग इन दैट, आई वॉज जस्ट यूजिंग दोज टाइम. ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको बिठाया हो बहुत देर तक. मैंने ऐसे कई क्लाइंट को बिठाया होगा बट वो समझते हैं कि क्यों क्या किया हुआ है, ओके. दिस वॉज नथिंग. There was nothing like and then I tried to reach to that client and she blocked me. And I literally cried, okay. And my husband was like, don't. That's fine. Sometimes negative comments, gives you that strength, okay. But you cannot digest that stuff when you are being so good with everyone. So honest with yeah, your work. Because I am the person, I always think about others, okay. ये स्टूडियो भी मैंने एक एक चीज़ जब मैं कर रही थी ना, तब मेरा एक ही मोटिव था, क्लाइंट का कंफर्ट. क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए, क्लाइंट के लिए ये करता है. मैं मेरी डॉटर के लिए कभी इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं लेती हूँ ऑनेस्टली, ओके. 4,000 5,000 के मैं नहीं लेती हूँ, बट क्लाइंट के लिए आई पे, ओके. ये मेरे शूट में बहुत अच्छा लगेगा, आई डू दैट. सो आई एम द पर्सन हु ऑलवेज gives that comfort and to the client. And when you get this kind of comment that really hurt you, okay, that hurts you. So मैंने अच्छे से आंसर तो दिया कमेंट में, रिटर्न रिव्यू पे, बट स्टिल दैट गूगल पे 1 स्टार विल बी ऑलवेज देयर, ओके. और वो भी still being nice, okay. So that experience has happened to me. You usually do you like negative comments वगैरह अफेक्ट करती है आपको? मेरे पास आती नहीं है ऑनेस्टली, कभी भी नहीं आती. ये एक आया है, अदरवाइज मेरे साथ कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है कि वो मेरे से नाराज होके जाए. ओके. कोई भी क्लाइंट. मैंने आपको हमारी बात हुई थी जनरली, तभी मैंने बोला था कि आई एम द पर्सन, मैं ये बिजनेस में क्यों हूँ, नॉट टू गेट अ फेम. अभी अपन बात कर रहे थे तभी. नॉट टू गेट अ फेम. सेकेंड, नॉट टू गेट अ रीच, ओके. प्रोफेशन है मेरा, what I'm doing has to be paid, okay. But what gives me satisfaction, what is my job satisfaction is जब मैं मेरे client के face पे वो happiness देखती हूँ, the अलग सा glow देखती हूँ जब वो मेरे pictures देखते हैं, that gives me a job satisfaction. That is my strength. That is keeps me going in this business. So आपने वो भी बोला था कि आप वर्कशॉप क्यों इतना नहीं करते हो, राइट? द वर्कशॉप इज अनदर फील्ड दैट इज टेकिंग मी टू टीचिंग फील्ड, बट आई एम नॉट फॉर अ टीचिंग, ओके. मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी मेरी जो मैं ये एन्जॉय कर रही हूँ ना, एवरी डे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, ओके. दैट इमोशंस, दैट टॉक्स शेयर्स होती है, एंड अलग अलग बच्चों से मिलती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. वो मेरी हैप्पीनेस चली जाएंगी अगर मैं टीचिंग फील्ड में चली गई तो. दैट स्कैर्स मी. एक्चुअली जब मैंने अप्रोच किया ना इनको पॉडकास्ट के लिए, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ शी शेयर्ड यस, बट शी इज़ नॉट दैट लाइक, वो इतना ज़्यादा पब्लिकली आप नहीं हो सारी चीज़ों में. यू नेवर अपलोडेड और यू डोंट लाइक टू appear on the screen as much, I think. Yeah, I like to show my work but not. Yeah. Yes. I don't know क्यों हाँ बोला आपने. Even I don't know. I think मैंने पॉज किया था 2 महीने तक. हाँ, right? मैंने 2 महीने के बाद you said कि मेरे को तब कॉल करना. I called that day. I know. So I think that could be the reason. I literally gathered that courage to be in front of the camera. I think that to take 2 months. आपने बोला भी था कि थोड़ा मेरे को कैमरा के साथ. 2 months to say hi. बट मैंने फिर बोला कि आई विल एडिट इट एंड सेंड इट टू यू फर्स्ट. इफ यू अप्रूव then and then I'm gonna upload it.
So, Yeah. what do you do to keep yourself up to date? The photography field is like the knowledge is very deep. Okay, जितना भी अंदर जाओगे उतना आप जाते ही रहोगे आपको अभी के स्टाइल में होना चाहिए। अभी क्या इक्विपमेंट चल रहा है, क्या लाइटिंग स्टाइल चल रही है, ओके, कौन सी फोटोग्राफी टेक्निक चल रही है, कौन सी लाइटिंग टेक्निक चल रही है, सो उसका नॉलेज होना चाहिए। आई कीप अपग्रेडिंग माई सेल्फ बाई विद द नॉलेज। बहुत सारे यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे दैन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो ऐसे ट्यूटोरियल उनके आते रहते हैं इन एडिटिंग, इन द नॉलेज, इन द इक्विपमेंट्स। गोडॉक्स के भी खुद के आते हैं, Right. लाइक कैनन के भी खुद के होते हैं। सो यू हैव टू बी अप टू डेट टू बी इन दिस फील्ड। इज देयर समथिंग यू डू जो कि जैसे कुछ चीज़ें होती है ना जो नॉन फोटोग्राफिक बैकग्राउंड से होती है लेकिन वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है, इज दैट एनीथिंग यू डू सिमिलर टू दैट? मुझे तो हर रोज सीखने मिलता है, हर एक पेरेंट से मैं कुछ नया नया सीखती हूँ। ओके, हर एक पेरेंट से कुछ नया पता चलता है मुझे कि बेबी ये भी ओ ऐसा भी करता है, ओके ऐसा भी होता है। सो दिस डेली रूटीन ऑफ माई इंस्पायर्ड मी एंड डेफिनेटली माई किड्स। आई थिंक मदरहुड ऑल्सो टीचेस मदरहुड, यस यस। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपने मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया है, बट आई रियली वॉन्ट टू से, यहाँ तक पहुँचने में मेरे अकेले का हाथ नहीं है। इट्स माई हस्बैंड, माई फैमिली, ओके। It's because of your They- kids you are in the business. Yeah, So this whole thing is only because of them. because of them, only Definitely. because of they allow me, they allow me to fly. They gave me wings to fly. I can say that. So I should not forget them at all. I'm working like full day here. My in-laws, my parents, like my husband, they all are handling my babies so well. So I can work. और इवन Okay, आपके हस्बैंड peacefully. का खुद का एक अलग बिजनेस है, Yeah. तो भी सुबह जब मैं यहाँ पर आया He इवन was बहुत here. बारिश था, पानी भरा हुआ था, इट्स अ क्रेजी डे, बट स्टिल वो यहाँ पे थे। Yes, yes, yes. He comes So every day. आई वाज बिग शॉक के लाइक Yes. एज उन्होंने बोला कि उनकी होटल्स वगैरह बहुत कुछ है, बट हाँ. ही वाज स्टिल हियर। Yes, yeah. So that supports matter a lot. डेफिनेटली। कोई भी वुमेन को अगर आगे आना है, कुछ भी करना है, husband support is matter. For anybody, matters. not only for Anybody. women. Yes. इट गोज फॉर मी एज वेल। Yeah, अगर घर definitely. सही है, घर में सब सही है, देन आई कैन डू एनीथिंग। Yes, true. Yeah. That is what I It's think. always a vice versa as well. घर सही तो सब सही, घर that is सही my तो सब motto. सही. Yes, घर सही तो सब सही. And yes, आपने जो बोला ना कि क्वेश्चन नहीं रखा, द क्वेश्चन इज कमिंग। क्वेश्चन वाज के जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ उसके पीछे का रीजन क्या है? आई नो द रीजन बिकॉज आई हैव स्टडीड यू, Yeah. सो यू आर गोइंग टू से ऑल ऑफ दिस थिंग। एंड यू नो ये जो भी अपना जो फील्ड है, द फोटोग्राफी फील्ड, इट्स बेसिकली 365 डेज जॉब। Exactly. I जो know. भी हमारे साथ रहते हैं, दे हैव टू बी पेशेंस। Yes. और एक चीज़ भी बताओ, बोलो। हाँ, श्योर, प्लीज। हमारा बिजनेस सिर्फ हमसे चलता है। डेफिनेटली हमारा बिजनेस Reliance सिर्फ हमसे can't do चल this रहा है। business. Yes. रिलायंस वुड नेवर बी एबल टू डू दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज वन मैन शो। Yes. So मुझे कई क्वेश्चंस आते हैं कि आप ब्रांच यहाँ पे खोल दो। यस, आई मुझे हैव दिल्ली आस्क्ड में- यू कि सूरत में खोल या दो। दिल्ली में खोल दो, मुंबई में खोल दो। मुझे लगता है कैसे मैं समझाऊं। ओके, दिस इज अ क्रिएटिव फील्ड, दिस इज अ फोटोग्राफी बिजनेस। ओके, सो इसमें इट्स अ प्री विजन। आई हैव गिवन अ प्री विजन नेम, सो इट्स प्रियंकाज विजन, इट वर्क्स। ओके, अगर प्रियंका नहीं होगी तो इट माइट नॉट वर्क। ओके, सो एवरीबडी इज लुकिंग, जब भी वो लोग आते हैं तो वो प्रियंका को ढूंढते हैं कि वेर इज Where is शी। Priyanka? या कभी कोई मुझे क्वेश्चन भी देते, आप ही पिक्चर्स लोगे ना? लाइक हाँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो कैमरा टच करती हूँ और मैं ही हूँ जो पिक्चर्स लेती हूँ। सो अगर मैं कहीं और पे ब्रांच कर दूंगी, हाउ वुड आई बी एबल टू गो हियर एंड देयर? नो, आई कैन नॉट। जब हम मिले ना, उससे पहले यहाँ पे जब मैं आया उससे पहले ये क्वेश्चन था, ओके। बट जब आपसे पूछा ना, आई फील्ड सो डम। मैंने बोला ये निकाल लेना पड़ेगा। नो, दैट्स फाइन। बिकॉज सम पीपल एक्चुअली डू ओपन
अलग अलग ब्रांचेस Yeah, they बिकॉज do. what they do is they don't shoot उनके इवन दोनों जगह पे नहीं, नॉट इवन इन देयर होम टाउन, सम पीपल जस्ट ट्रीट दिस अगर एज अ सिर्फ बिजनेस. बिजनेस के लिए या करना हो ना तो मैं कर सकती हूँ, बट हाँ मुझे करना नहीं है. हाँ, यू आर नॉट दैट काइंड या ऑफ पर्सन आई अज्यूम. हाँ, वो मुझे करना नहीं है. दिस इज माई पैशनेट जॉब. दिस इज आई एंजॉय दिस थिंग्स. सो लेट मी एंजॉय. मुझे यहाँ पे भी नहीं भागना है, मुझे वहाँ पे भी नहीं भागना है, मुझे यहाँ पे ही करना है. और आई एम सो ब्लेस्ड कि पीपल डू ट्रैवल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू मी. दे डू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई, दिल्ली. वो लोग मुझे बुलाते सबसे पहले क्वेश्चन तो वही होता है, आप यहाँ पे आके कर दोगे ना. जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि नो, आई डोंट ट्रैवल, आई ओनली ट्रैवल फॉर द न्यू बॉर्न, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द मुंबई दे वोंट बी एबल टू कम अलॉन्ग विद द बेबी फॉर 5 to 15 7-8 days. दिन, हाँ, वो नहीं आ पाएंगे. देन आई कैन अंडरस्टैंड. बट फॉर अ सीटर, ऑल यू नीड टू कम अलॉन्ग विद द बेबी. लुक एट माई स्टूडियो. हाउ कैन यू टेक दिस? या मैं पूरा लेके वहाँ पे नहीं आ सकूंगी. और सिटर में यू हैव टू हैव ऑप्शंस. और जब वो आते हैं यहाँ पे, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं, जितने भी, हैदराबाद से बहुत से हैं, मुंबई से बहुत से, दिल्ली में, वो लोग वो पहली बार गुजरात आए होते हैं. सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं, ये स्टूडियो ना कुछ अलग ही वाइब्स देता है. डू यू फील दैट? मैं जब एंटर हुआ ना तब मैंने आपके हस्बैंड को मैंने वही बोला, मैंने बोला ये क्या बना दिया है आपने, बिकॉज इट इज अमेजिंगली बिल्ड. एवरी स्क्वायर फुट इज यूटिलाइज्ड. यस. That is why I loved this place. I'm definitely gonna take some shot to show my viewers. Sure. So we are. Plus the environment, that vibes. The clients that mostly is, said the vibe is so beautiful कि हमें जाना नहीं है यहाँ से वापस. I make sure कि ऐसा ही environment मिले मेरे पेरेंट्स को. वो मेरे पहले से माइंड में था कि जो भी बनाओ वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. सो दैट द फर्स्ट थिंग वॉज, उनको घर का एनवायरनमेंट फील होना चाहिए. उनको ऐसा लगना चाहिए एक घर से दूसरे घर गए हैं, बल्कि उनको ऐसा लगे यहाँ पे ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं. ये तो मतलब ये चीज बेबीज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है. बहुत इम्पैक्ट द करती है. फेमिलियरिटी. यस, इवन कैप्चर में भी बहुत इम्पैक्ट करती है. सो मेरा प्लस पॉइंट वो है कि मुझे मिल ही जाता है एक्सप्रेशंस. बिकॉज यूजुअली बेबीज में क्या होता है, व्हाट आई फील इज कि जब वो घर के अलावा कहीं जाते हैं ना तो उनके माइंड में यही चलता है कि ये हॉस्पिटल है. एग्जैक्टली, आई नो. व्हाट आई थिंक. तो अगर वो घर के जैसा नहीं दिखता ना, आई एम सॉरी, अगर वो घर के जैसा नहीं दिखता ना तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दे स्टार्ट क्राइंग. यस, ट्रू. सो यहाँ पे आके मैंने इसीलिए कैटेगरी मेरी बढ़ा दी. जब मैं घर से काम कर रही थी तब मैं सिर्फ 1 साल तक कर रही थी. आई वॉज नॉट डूइंग टोडलर, I was not doing any other category. बट ये स्टूडियो में मेरा प्लस पॉइंट वो था कि मुझे वो करना था. क्यों करना था? क्योंकि मुझे पता था कि घर पे मैं नहीं दे पा रही थी, वो एनवायरनमेंट उनको नहीं दे पा रही थी, वो स्पेस नहीं थी मेरे पास, ओके, कि मैं यूज़ कर सकूँ वो. सो यहाँ पे मुझे पता कि मुझे टोडलर कैटेगरी ओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ तो चाहिए. कुछ नहीं तो मुझे आउटडोर चाहिए कि वो ऐसे ही खेलेंगे और मैं पिक्चर्स ले लूँगी. सो मैंने आउटडोर भी बहुत रखा हुआ है, अलग अलग फ्रेमिंग रखी हुई है कि वो कहीं पे भी खेल ले, मुझे मेरी फ्रेम मिल जाएंगी. ओके. एट द एंड ऑफ एवरी पॉडकास्ट मैं हमेशा जो गेस्ट है उनसे ये पूछता हूँ कि व्हाट वुड बी देयर एडवाइस, जो न्यू फोटोग्राफर्स है, जो इस बिजनेस में या इस आर्ट फील्ड में आने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी है बट न्यू है, तो उनके लिए वो सक्सेसफुल हो पाए, कुछ अच्छे से सीख पाए, उसके लिए क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर एडवाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल माय एडवाइस इज जस्ट बी यू. जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, ओके, एंड देन फॉलो योर हार्ट, ओके. कि जस्ट एंड अनदर थिंग, डोंट कॉपी. किसी ने ये किया तो मुझे भी ये करना है, ऐसा नहीं है. अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको ये करना है तो करो, ओके. सेम विद द फोटोग्राफी, यही फील्ड में, बिकॉज फर्स्ट मैंने जो बोला वो क्रिएटिव फील्ड के बारे में बोला, ओके, विच वी आर इन द क्रिएटिव फील्ड, ओके. द फोटोग्राफी फील्ड में लर्न द राइट वे, ओके. कुछ भी हो, लर्न एवरीथिंग about photography. Is not only taking pictures. Just make sure it is not at all only taking pictures. It start from the
salesperson, okay, because you have to attend the call, so you have to be very nice with the client, okay. वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, जो भी होता है ना क्लाइंट में आपका एक इम्प्रेशन, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी नाइस विद द क्लाइंट. फ़ोन पे अच्छे से बात करना सीखो, ओके. देन आपको क्या दिखाना है, व्हाट इज़ योर क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफी, ओके, वो बताओ आप, ओके. देन जो भी करो, जस्ट focus on that work, okay. Do not copy anything, and that's it. That's what I would say for newcomers. Well, I think that is it. That is it, okay. Thank And you so one much, more actually. thing is I want to add for a newcomers, that Okay. maintain a consistency in your work, okay. Maintain a consistency and quality in your work. It should seen in the proper manner, with the proper lighting technique, proper camera angle, and proper editing procedure, okay, that everything works together. So just make sure you maintain that, then you'll be king in this field, all I would say. Thank you so much for your time. I have learned a lot. Thank you so much for encouraging me to be here. No, मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ, but sometimes. Yeah, Thank you so it much was for your great time. talking to you, because it was just a smooth. I Yeah. thought it's gonna be like Somebody who is unknown and who is yeah, I gonna. know, I know. आप It क्यों was ऐसा good. करते हो? Ah. No, we don't do things like Yeah. that. It was like a normal conversation. It was good. I Yeah. ho- I also. Yeah, you make me feel that, you gave me that warmth, that मैंने तो बहुत सीखा. मैं बहुत questions भी किए. Even not this podcast only. When we Yeah, were I know. sitting, I have asked you a lot of things, which I usually do with anybody. good. Actually, you are doing a good business, I feel like, because you meet each and every different kind of people every day, right? And you getting the knowledge, you are getting that exposure. Yes. सबका जानने में, that is the You best have thing. spent a lot after your life, and I'm learning from you. I'm spending one day with you. You It are gives me a giving your- lot of knowledge. Yeah, I know. So yeah, it's good. It's good. Free workshop. That's what I would say. It. Free workshop. Free workshop. But you are getting a knowledge. You are getting a very good knowledge about each and every field. Yes, Which is definitely. very good. Definitely. Yeah. लोगों को पे करने में भी ऐसा नहीं मिलता है, Definitely. right? Definitely. Yes. So if I don't earn from this, I don't regret it. I know. I won't Because regret everything is not for free. it. Yeah, Everything is not for free. definitely. अगर मैंने सबसे पहला सेशन फ्री किया है, तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स फॉर फ्री. It's for my own. That's considered as like Some a things should be for what is inside. yes, yeah, and it's never be free. You are getting so much into from Definitely. that session. आपको सीखने को मिलता है. मुझे न्यू कमर्स को वो भी बोलना है, शायद से वो लोग बोलेंगे कि फ्री शूट्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करना You know, चाहिए कि मेरे जो जिनके पास मैं सीखा हूँ ना, he used to say if you are doing it for free, तो डबल मेहनत से करना. एक्चुअली अगर तू- बिकॉज दैट विल पे यू. जो आपने डबल मेहनत से किया हुआ है ना, वो शाउट आउट होगा. वो ही चीज आपकी मार्केट अपने आप हो जाएगी, ओके. Yes, एंड exactly. वो जो बैक आएगा ना आपके पास, दैट इज लाइक क्या बोलते हैं, बढ़ के आएगा और बढ़ के आएगा. एग्जैक्टली, और बढ़ के आएगा. He always used to say it. यस, कि अगर फ्री में if you are doing a paid job, अगर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया वहाँ तक का ठीक है, लेकिन अगर तू फ्री में कर रहा है तो यू हैव टू पुट इन 200%. एक्चुअली